Assalamu alaikum students, everyone can hear me? वालेकुम अस्सलाम सर. Yes sir. बस 5 मिनट नहीं बल्कि 3 मिनट्स में जो है ना शुरू करेंगे इंशाल्लाह. वालेकुम सलाम. सर आपसे कहना था कि ट्यूटोरियल 6 जो है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा एरर्स आ रही थी और उसको अब तक मैंने सबमिट नहीं किया. पहले स्लाइड से कर रहा था लेकिन उसके बाद भी मसला आ रहा था. उससे पहले वीडियो भी देखी थी और उसमें फिर भी मसला एरर्स आ रहे हैं तो वो सबमिट नहीं हुआ हुआ. तो उसको प्लीज़ आज तक का 1 दिन का या आज दोपहर तक का टाइम दे दो. वहाँ से गायब ये हो गया हुआ है. लास्ट आज लास्ट लैब की बात हो रही है. सर ट्यूटोरियल 6 ट्यूटोरियल लास्ट लैब ठीक ट्यूटोरियल है. 6. ठीक है, मैं असाइनमेंट 1 की एक्सटेंड भी करता हूँ. सर असाइनमेंट 1 की भी नहीं हुई. जी सर एक दिन असाइनमेंट अगर 1 की भी है वो उसमें भी काफ़ी वो देखेंगे कि उसे करना है कि नहीं करना. असाइनमेंट 1 वैसे तो 26 तक की थी और उसके बाद हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है सर आप मजीद उसकी करने का. सबमिशन ओपन कर देना कि आपको पता चल जाएगा कितना लेट है लेकिन सबमिशन तो वहीं पे रहेगी. वो सबमिशन गायब हो गई है वहाँ लेट्स से. सी लेट्स सी लेट्स सी. अभी देख लेते हैं उसे भी. अच्छा जी students, let's start the session. It's 12:35 and I think we have got 19 or 20 students here, so I think that is a good enough strength to start with the session. In today's session, we will continue with whatever we have already discussed in the last session. And what I'll do is, and since I'm actually carrying my own environment, my own laptop, I will show you, and in fact, I'll demonstrate to you using an application. कि SMS जो है एक emulator से दूसरे में किस तरह से हो रहा है. We will run through the code, a complete code on my screen. और उसके बाद जो उसके बाकी एलिमेंट्स थे जिनको हमने डिस्कस नहीं किया था लास्ट सेशन में, दैट इज ब्रॉडकास्ट, रिसीवर एंड हाउ टू डू द ईमेलिंग, हाउ टू इनकॉर्पोरेट दैट फीचर इन योर एप्लीकेशन. इस सब को जो है आज हम होपफुली कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. जस्ट टू रिकैप that in order to run this application, in order to run this capability, you don't really need a separate device. You can do that all together in your Android emulator, and the number is provided up here, and I'll show you as part of the demonstration how you can identify the number and you can send it from one emulator to another. We have learned in the last session that you can
incorporate the capability, but in order to incorporate this SMS capability, you'll have to set up the user permissions, and then you can use two different options, intent or using SMS manager class. We have discussed that if you are using the intent class, then in that case, most probably you don't have to set the permissions, and you can just hand over the control to another application, and that application can then do the thing, SMS messaging. But there are drawbacks कि आपने hand over कर दिए control to another application, वो जो user का experience था altogether आपकी एप्लीकेशन के साथ वो नहीं परफॉर्म हो सका। अगर आप implicit intent को यूज कर रहे हैं तो we have already discussed that you will have to use SMS2 with colon, and you will have to use the number after that. That can be either hard coded or it can be provided as part of the text field, जिसको वो to string में convert करने के बाद आपको provide कर सकता है in a string format. But a better way of using SMS messaging is using SMS manager class, जिसके number of steps जिनको हमने learn किया था last session में, that included add the permission, send SMS permission to your manifest file, and then to check within your Java code whether you have been granted a permission, or if not, you can then request for the permission. You will get a pop-up box, and over there you can either grant or deny the permission. So once you have gone through the first two steps, then the last step is to use send text message method of SMS manager class, जिसको यूज करते हुए आप ये काम कर सकते हैं. We already seen this slide that is showing you how to set up your permissions, and in fact I will show you in another couple of minutes my actual development environment, जिसके ये snapshots आपको नजर आ रहे from the Android Studio. So in order to send a message, SMS message, you will have to set up the send SMS request within your manifest file, and once it has been declared here, then you can check as part of your Java code within step number 2 whether you have been granted a permission. If not, you can request for that, and that is the complete logic. So within the code itself, you are checking whether your manifest, whatever request you have declared over here, in this particular case it was send SMS, whether your packet manager within the device itself, whether it has granted the send SMS feature or capability to your application or not. If not, then you can request for it, and as a result of this logic, you will get a pop-up message where you can deny or allow this capability. We have also discussed that there are 5 parameters that you will have to set up as part of step number 3, which is a part of your send text message parameter. There are 5 of them. Number 1 is destination address, then you have got service center address, then SMS message, sent intent, and delivery intent. Out of the 5 parameters, you will just need to set 2 of them, which is parameter number 1. This is your actual mobile number. In your case, it is going to be the number associated with your emulator, and the third parameter, which is the actual message, SMS message, which you want to send from one emulator to another emulator. This is the
snapshot or snippet. As part of step number 3, once you have done the first 2 steps, declaring the permissions, setting up or checking your permissions, the third step was to actually use the method of SMS manager class, which is send text message, where you send these 5 parameters: the number, for the second parameter it is going to be null, and then your message, and the null for the last 2 parameters. So once you will perform all 3 steps, this is going to be the output. Yes, Zaim, you have got a question? सर हम लोग इंटेंट क्यों सेंड कर रहे हैं उधर? अगर हम लोग इंटेंट नल की जगह कोई इंटेंट सेंड करें तो उसका क्या होगा? क्या कारण दोबारा पूछे? सर जब हम मैसेज के आगे नल सेंड कर रहे हैं ना, तो जी। इंटेंट, लेकिन वो सेंड इंटेंट है, तो इंटेंट में क्या ये क्यों नल? या अगर हम लोग कोई इंटेंट भेजें तो वो क्या करेगा? यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में हम कोई इंटेंट नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली जो डिफॉल्ट इंटेंट है जो कि बैक साइड पे सेट हुआ है वो उसको भेज देगा, और वो it's just like a filler, so it's not doing anything. But if some application is waiting for your intent, or you are waiting for somebody's intent, in that case argument number और parameter 4 and 5 हमें सेट करने पड़ेंगे, क्योंकि हम टेस्टिंग कर रहे हैं इस एप्लीकेशन की using one emulator to another. In our case, most probably we don't have to set any null, any intents, और बिहाइंड द सीन एक डिफॉल्ट इंटेंट ऑटोमेटिकली कॉल होगा और चला जाएगा जहां पे जाना, या अगर उसने कुछ नहीं भी करना सर ये इस केस में ऐसी वो कर एड्रेस सकता है। से क्या इसका वो है मुराद है? आप फर्स्ट सेशन में थे कि ये आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं स्क्रीन, ये वाला लेक्चर? सर आप लास्ट पिछले सेशन में था, लेकिन मैंने बीच में लेट था। जी, ये एससी एड्रेस जो है वो आप देख सकते हैं, जैसे कि क्योंकि आज पर्पस जो है वो सिर्फ रिफ्रेशर था, हमने मेन जो चीज देखनी थी वो बाद का कोड है, लेकिन चूंकि आपने पूछ लिए, एससी एड्रेस इज द सर्विस सेंटर एड्रेस। अगर आप एमुलेटर्स को नहीं यूज कर रहे, यू आर एक्चुअली यूजिंग द एक्चुअल नंबर्स, योर नंबर टू अनदर नंबर, रियल नंबर्स, उसके केस में आपको एससी सर्विस सेंटर का एड्रेस देना पड़ेगा। कुछ कॉन्फ़िगरेशन है जिसकी इंफॉर्मेशन आपको आपके डिवाइस के सिम कार्ड के ऊपर मिलेगी, उसको सेट करना पड़ेगा एज पार्ट ऑफ योर सेकंड पैरामीटर, और फिर आप रियल मोबाइल नंबर्स के ऊपर इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं फ्रॉम योर नंबर टू अनदर नंबर। अच्छा जी, सो दिस इज द आउटपुट व्हिच यू कैन सी हियर, जहाँ पे एक एप्लीकेशन जो कि इस वाली एप्लीकेशन को रन कर रही है, उस एप्लीकेशन से आपने एक सेकंड एमुलेटर के ऊपर इंफॉर्मेशन को भेजा है, एंड टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन उसके बाद शुरू हो गई इनके दरमियान। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल शो यू माय डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और वहाँ पे मैं आपको एक बार दोबारा इसको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि जब आप इसे एक्चुअली रन करेंगे तो आपके स्क्रीन पे क्या चीज़ आपको नजर आएगी। अच्छा जी, एवरीवन कैन सी माय स्क्रीन? यस सर। जी जी, अच्छा जी, तो ये आपकी मेन एक्टिविटी डॉट जावा है, जो आप देख सकते हैं नॉर्मली जिस तरह हम एक्सटेंड करते हैं उसी तरह ही हमने की हुई यहाँ पे, सो नथिंग न्यू अबाउट इट। सो मेन एक्टिविटी एक्सटेंडिंग ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, और उसके अंदर हमने कुछ स्टैटिक वेरिएबल्स, कुछ कांस्टेंट्स डिक्लेयर किए हैं। यू डोंट रियली हैव टू, बट इट्स अप टू योर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। उसके बाद वो व्यूज जो कि आपके एक्टिविटी XML के अंदर
available है. In this particular case, I've got edit text and a button. So 2 edit text and a button. One edit text में आप नंबर को एंटर कर रहे हैं, सेकंड एडिट टेक्स्ट के अंदर आप मैसेज जो आप भेजना चाह रहे हैं, एंड द थर्ड व्यू इज द बटन इटसेल्फ, जिसको क्लिक करेंगे तो सेंड हो जाएगा, या आपका लिसनर जो है ऑन क्लिक वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. इन दिस पर्टिकुलर केस आप देख सकते हैं कि एडिट टेक्स्ट 2 मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं और एक बटन को डिक्लेयर किया है, और इसके बाद जिस तरह हम यूजुअली ऑन क्रिएट का मेथड ओवरराइड कराते हैं वहाँ पे डिक्लेयर कर दी एज इट इज. एवरीथिंग इज द सेम एक्सेप्ट इन दिस पर्टिकुलर केस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक चीज को चेक किया है कि आपकी मैनिफेस्ट फाइल, इस मैनिफेस्ट फाइल के अंदर आप देख रहे हैं स्टेप नंबर 1 में क्योंकि आपकी इंटेंशन थी कि आपने मैसेज को सेंड करना है, सेंड SMS. इन दिस पर्टिकुलर केस आपने अपनी इस मैनिफेस्ट फाइल के अंदर लाइन नंबर 6 में मैंने डिक्लेयर की है सेंड SMS की परमिशन. ये एप्लीकेशन जो है जो ही लोड होगी आपकी इन्वायरमेंट के अंदर, आपकी इन्वायरमेंट को पता चल जाएगा कि दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन रिक्वायर अ सेंड SMS और इन माय केस also to receive an SMS. इसमें हम बाद में बात करेंगे सेकंड परमिशन पे, लेकिन अभी फर्स्ट परमिशन के बारे में हम सिर्फ जान रहे हैं कि जी आपको सेंड SMS की मैसेज की परमिशन चाहिए. उसी चीज को जो है वो यहाँ पे चेक कर रहे हो कि इफ इन दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी आपकी मैनिफेस्ट फाइल में जो सेंड SMS की परमिशन है, अगर आपके एनवायरनमेंट के पैकेट मैनेजर ने उसे ग्रांट नहीं किया तो उस केस में ये एक्टिविटी रिक्वेस्ट रेज करे पैकेट मैनेजर को कि मुझे सेंड SMS की परमिशन चाहिए. ठीक है, एंड इस पर्टिकुलर केस में आप देख सकते हैं एक पैरामीटर सेट किए. यस, माय इंटेंशन इज कि आई वांट to execute send SMS is particular environment may using this particular activity, so kindly grant me the permission. So as a result of this conditional statement आपके स्क्रीन के ऊपर जो है एक पॉपअप अपीयर होगा जिसमें एक्सेस डिनाई की परमिशन आपको नजर आएगी. So once you have done that bit, the next bit is कि आपने जो send बटन है आपका उसके ऑन क्लिक लिसनर के ऊपर आपने वो वाला लॉजिक जो है इनकॉर्पोरेट करना है जो कि SMS मैनेजर क्लास को यूज करेगा. जिस तरह हमने पहले उसके बारे में जिक्र किया कि वंस यू और योर यूजर इज गोइंग टू क्लिक ऑन द सेंड बटन, लॉट ऑफ थिंग्स शुड हैपन विद इन द ऑन क्लिक मेथड. नंबर 1 इज कि आपकी जो फोन नंबर की टेक्स्ट फील्ड है जो कि आपने ऊपर डिक्लेयर भी की हुई, दिस इज योर फोन नंबर, दिस इज योर मैसेज. तो आपकी जो फोन नंबर की टेक्स्ट फील्ड है उसमें से गेट हो टेक्स्ट और उसे कन्वर्ट किया जाए स्ट्रिंग में और आपके पास नंबर आ जाएगा इन अ स्ट्रिंग फॉर्मेट. द सेम गोज फॉर योर मैसेज फील्ड कि आपकी मैसेज फील्ड में से गेट टेक्स्ट हो उसे कन्वर्ट किया जाए टू स्ट्रिंग में और जो भी रिजल्ट आएगा उसको स्ट्रिंग जिसका नाम MSGA शॉर्ट फॉर मैसेज, उसमें ये दोनों अपीयर हो जाए, सेव हो जाए, स्टोर हो जाए. उसके बाद आपने ट्राई कैच का ब्लॉक लगाना है. इट्स अप टू यू whether you are using it or not. It is a good practice. SMS manager class का एक इंस्टेंस बनाया आपने. This can be any name. It's up to you क्या नाम रखना चाहते हैं. और आपने इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया फर्स्ट लाइन में, लाइन नंबर 48 में. और लाइन नंबर 49 के अंदर आपने वो वाला मेथड कॉल किया जिसमें 5 पैरामीटर्स आपको देने पड़ेंगे. द फर्स्ट पैरामीटर इज द नंबर इटसेल्फ जिसे हमने स्ट्रिंग में सेव कर लिया. सेकंड पैरामीटर नल रखा है हमने क्योंकि हम किसी किस्म का सर्विस सेंटर यूज नहीं कर रहे, हम आपका एक्चुअल नेटवर्क यूज नहीं कर रहे मोबाइल का. उस केस में आपको इसे नल सेव करना है. और
थर्ड जो मैसेज है, थर्ड पैरामीटर इज गोइंग टू बी MSG, जो कि आपका मैसेज है, जो कि एक्चुअल आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं फ्रॉम दिस बिट टू अनदर एमुलेटर। ठीक है, सो दीज आर द 4 पैरामीटर्स दैट यू नीड टू सेट, एंड यू कैन देन मेक अ टोस्ट कि जी आपका मैसेज जो है वो सेंड हो चुका हुआ है, और इफ देयर इज एनी एक्सेप्शन उस केस में वो आपको ये भी बता दे कि आपकी कोई फील्ड एम्प्टी है, या इफ देयर इज एनी अदर एरर वो यहाँ पे शो कर सकते हैं इन एक्सेप्शन फॉर्मेट। लेट मी नाउ डेमोन्स्ट्रेट कि बिहाइंड द सीन जो है वो किस तरह से काम चलता है। Just hang on, बस। अच्छा जी, अब आपके सामने ये 2 एक्चुअल एमुलेटर्स नजर आ रहे हैं। एक्सक्यूज मी। Yes, sir. हाँ, ये 2 एमुलेटर्स हैं। अगर इनके आपने नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है, लेट मी जस्ट शो यू। Here you can see the emulator on the left hand side, it has got a number 5554, and the emulator on the right hand side of the screen, iska number is 5556. अब मैं यहाँ से 5554 से एक मैसेज भेजना चाहूँगा 5556 पे, इसलिए मैंने फर्स्ट फील्ड के अंदर इसका नंबर दे दिया कि आई वांट टू सेंड दिस मैसेज टू 5556, एंड लेट मी जस्ट चेंज एंड आई विल गिव माय नेम ओवर हियर। ठीक है, सो आई एम सेंडिंग दिस मैसेज टू सर, एक क्वेश्चन 5556। पूछना है। जी जी, सर, जब हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के साथ लिंक हो रहे हैं तो क्या कंपलसरी मैंडेटरी है कि हमें उसका नंबर लाजमी पता हो? जी आपको लाजमी पता होना जरूरी है, अनलेस कि आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। तो सर, जब हम लोग इंटरनेट डिवाइसेस यूज कर रहे थे लाइक फेसबुक मैसेंजर या फिर थ्रू सिम कर रहे थे, उसमें तो हमारे पास नंबर होता है या फिर अगला बंदा हम लोग फेसबुक पे ऐड करते हैं तो हम मैसेज करते हैं, तो उसमें तो हमें डिवाइस का नंबर नहीं चाहिए होता, तो उसमें क्या चीज कंपलसरी होती है फिर? उसमें आपका फेसबुक का अकाउंट जो है वो सेव नहीं हो, रजिस्टर नहीं हुआ होता। यस सर। तो जब आपका फेसबुक का अकाउंट सेव होता है तो वो आपसे ऑथेंटिकेशन शुरू में नहीं मांगता कि जी मैं इस नंबर पे ये चीज भेज रहा हूँ, प्लीज ऑथराइज या प्लीज कंफर्म करें ये आप ही का नंबर है। आप कर रहे होते हैं कि नहीं? सर, बट वो तो चॉइस होती है कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बगैर नहीं आप कर सकते, आई एम सॉरी, वो आपको करना पड़ेगा अनलेस के यू आर ब्रॉडकास्टिंग टू एवरीवन, देन यस। इफ यू आर सेंडिंग इट टू अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, उसके केस में आपको बताना पड़ेगा कि ये मैसेज मैं इस नंबर पे भेजना चाह रहा हूँ। दिस इज अ प्रीटी यूजुअल वे ऑफ सेंडिंग अ मैसेज। आपने अपने फ्रेंड को भेजना है, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि जी उसका नंबर क्या है। कैन यू सेंड इट विदाउट द नंबर? नो सर। अनलेस के मैं आपका क्वेश्चन ना समझ सका हूँ। आई मीन you definitely require a number or you need an account जो कि किसी नंबर के साथ एसोसिएटेड हो। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, आप फेसबुक पे भेजते हैं, आप इंस्टाग्राम पे भेजते हैं, वो जो इंस्टाग्राम है दरमियान में, या स्नैपचैट है, दैट इज अ फिल्टर बिटवीन यू एंड द डेस्टिनेशन नंबर। उस इंस्टाग्राम के अकाउंट के साथ कोई नंबर एसोसिएटेड होगा बिहाइंड द सीन, जिसको वो मैसेज जाएगा। आप इंस्टाग्राम पे उस अकाउंट पे भेज रहे हैं और उस अकाउंट से आगे उस नंबर पे जा रहे हैं। ठीक है, सो यू आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग अ फिल्टर इन बिटवीन। लेकिन रिगार्डलेस, हाँ जी, जो यूजर है उसके साथ भी कोई ना कोई नंबर आपका एसोसिएटेड होगा। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, व्हाट्सएप डायरेक्टली आपके नंबर के साथ एसोसिएटेड है। तो ये जो फर्स्ट फील्ड है एंड सेकंड फील्ड, ऑब्वियसली ये बोथ आर मैंडेटरी, उसके बगैर आपका फायदा नहीं होगा अनलेस कि आप ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, जिसको हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कि सम अदर एप्लीकेशंस आर वेटिंग फॉर योर मैसेज एंड यू आर जस्ट सेंडिंग अ जनरल इंटेंट टू एवरीवन कि जी ये मैसेज है फॉर एवरीवन हु इज इंटरेस्टेड। ठीक है,
and whoever is waiting for your message, they are going to receive it. Whether you are intending it to be received by that person or not, वो मैटर नहीं करता होगा. ठीक है, इस ये सेकंड पार्ट है जिस पे हम अभी डिस्कशन करेंगे इसके बाद. Okay, sir. लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस हम एक स्पेसिफिक मोबाइल नंबर के ऊपर इंफॉर्मेशन भेजना चाह रहे हैं, और क्या मैसेज भेजना चाह रहे हैं वो सेकंड फील्ड के ऊपर हमने उसे मेंशन किया हुआ है. इफ यू ऑब्जर्व ऑन दिस emulator, the moment I'm going to click send, hopefully it is going to appear as a message, as a regular message on this emulator. ठीक है, same as it is. So let's see if that works. ये आप देख सकते हैं ऑन द राइट हैंड साइड के इस एमुलेटर ने ये इंफॉर्मेशन जो है वो रिसीव कर ली है, एंड यू कैन सी इट ऑन द राइट हैंड साइड. जो मैसेज इस एमुलेटर ने भेजा वो इस एमुलेटर ने रिसीव किया, और वो कंप्लीट उसकी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है कि पहले इधर से 5554 से हेलो का मैसेज आया, फिर उसने अपना नाम शेयर किया, एंड देन you can now reply back. ठीक है, अब वो इस साइड पे जो है वो इसने रिसीव कर लिए आउटसाइड द एनवायरनमेंट. सो इट्स अप टू यू कि इस बिहेवियर को आप किस तरह सेट करते हैं कि वो रिसीव भी उसी एप्लीकेशन के अंदर हो, ना कि वो रिसीव करे एप्लीकेशन से बाहर. In this particular case, left hand side पे जो एप्लीकेशन है वो इंफॉर्मेशन रिसीव कर रही है बैक, but that is received by the platform itself, not by the application. एप्लीकेशन की कैपेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि वो इंफॉर्मेशन सेंड कर रही है, इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं कर रही, क्योंकि उसकी कोई लॉजिक इनकॉर्पोरेट नहीं हुई उस केस में. सो कमिंग बैक टू द स्लाइड्स, द नेक्स्ट टॉपिक जिसको हमने कवर करना था और लास्ट सेशन में हम कवर नहीं कर सके, दैट इज दैट इफ you want to receive the SMS messages, you will have to use another class which is known as broadcast receiver class. इसका मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था कि if you have got an application which is going to help you if you lose your mobile somewhere. कि आपका मोबाइल किसी ने शायद चोरी कर लिया है या उठा लिया है, या you lost it somewhere, you have got literally no idea वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, इधर है या ऑफिस में है या जिम में है. In that particular case, most probably you might have got an application that is going to wait for your intent. जब तक आप उसे ट्रिगर नहीं करते, वो रिमोटली कहीं पे पड़ी हुई है. The moment you are going to send, where are you? वो एप्लीकेशन अपनी GPS लोकेशन जो है वो शेयर कर सकती है, and it can respond back कि जी मैं इस लोकेशन पे इस एग्जैक्ट जगह पे अवेलेबल हूँ, या इस whatever is the scenario, that depends on the sophistication. So if this is the sort of application or capability you are looking for, then most probably you will have to implement broadcast receiver class. If you are using that class, in that case you will have to use a method which is on receive. What should happen? इस क्लास को जब आप एक्सटेंड करेंगे तो आपको ओवरराइड करना पड़ेगा ऑन रिसीव. इट इज सिमिलर टू व्हाट वी डू जब हम जब एक्टिविटी क्लास को आप एक्सटेंड करते हैं, आप ऑन क्रिएट की क्लास मेथड को ओवरराइड करते हैं. द सेम इज गोइंग टू बी द केस जब आप ब्रॉडकास्ट रिसीवर की क्लास को एक्सटेंड करेंगे, अपनी कोई क्लास बनाएंगे रिसीविंग की, तो आपको ये मेथड है उसे ओवरराइड करना पड़ेगा. The Android framework sends out a system broadcast of events such as receiving an SMS message containing intent that are meant to be received using a broadcast receiver. Similar to
Similar to what we have done for send SMS permission. जो SMS मैनेजर की क्लास थी उसमें अगर वो ही यूज कर रहे थे हम पर्टिकुलर क्लास, तो उसमें हमारी इंटेंशन ये थी कि हमने सेंड करना है कुछ, तो आपको सेंड SMS की परमिशन को रिक्वेस्ट करना था। इस पर्टिकुलर केस में हम रिसीव SMS की परमिशन को सेट करेंगे अपने एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल के अंदर और उसको फिर इनकॉर्पोरेट करेंगे लेटर ऑन अपनी जावा एप्लीकेशन के अंदर। नाउ लेट मी शो यू द एक्चुअल टैग्स जो कि आपकी मैनिफेस्ट फाइल के अंदर आपको ऐड करने पड़ेंगे। नंबर फर्स्ट, जो आपको रेड पार्ट नजर आ रहा है ऑन द टॉप साइड, ये वो टैग है जो कि आपकी मैनिफेस्ट फाइल के बिल्कुल टॉप पे सेट होगा और उसमें आप बता रहे हैं कि दिस टाइम rather than sending SMS, this application is going to receive an SMS from an external environment, and once it is going to be received, उसके बाद कोई काम कुछ एक्शन उसने परफॉर्म करना है। One new thing जो कि आपको इधर नजर आ रही होगी, instead of using activity tag, this time we are using a receiver tag और उसमें हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि सिमिलर टू एक्टिविटी, जिसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, एक और क्लास हम बनाने लगे हैं फॉर रिसीवर जो कि जिसका नाम होगा माय SMS रिसीवर। और इसमें दो फर्दर टैग आपको एनेबल करने पड़ेंगे। वन इज एंड्रॉयड enabled to true and Android exported to true. So exported option allow your application to respond to outside broadcast, while the enabled tag allow it to be instantiated by the system. ठीक है, so जो ही enabled होगा that means अभी तक वो deactivated था, जो ही उसे आप enabled true कर देंगे that means कि वो उसकी एक कॉपी उस environment के अंदर अवेलेबल हो जाएगी और वो वेट करेगी फॉर एन एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू सेंड यू एन इंटेंट। ठीक है, सो दैट इज द होल पर्पस ऑफ सेटिंग दीज टू टैग्स। और उसके बाद आप सिर्फ एक इंटेंट को इनेबल कर रहे हैं कि इस इंटेंट में हम एग्जिस्टिंग टेलीफोनी की एक कैपेबिलिटी है SMS रिसीव्ड की, उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, सो दिस इज what you're doing. You're not creating your own intent, but you are using telephony, that is the environment provided by the Android, और उसकी जो SMS receiving की capability है उसको आप यूज कर रहे हैं। अच्छा जी, as I mentioned in the last slide के जब भी आपको broadcast receiver कि क्लास को यूज करना है, यू विल हैव टू एक्सटेंड दैट पर्टिकुलर क्लास। सो जिस तरह हमने लास्ट स्लाइड में डिक्लेयर किया कि वी आर गोइंग टू एक्सटेंड द ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्लास एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट माय ओन ऑन रिसीव मेथड। तो यहाँ पे इस जावा क्लास के अंदर आपको ये चीज नजर आ रही है। देयर आर फ्यू पैरामीटर्स दैट वी हैव सेट अप हियर, but the important bit is that we are extending or overriding an on receive method of the broadcast receiver class, जिसमें couple of things are happening। ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज आप लोगों ने ज़हन में रखनी है कि SMS मैसेजिंग जब भी आपने करनी है टू और फ्रो, there are some standard formats जो कि यूज किए जाते हैं। देयर इज अ स्टैंडर्ड अवेलेबल आउट देयर, जिसमें से एक स्टैंडर्ड जो है वो है PDUS। इसके एग्जैक्ट जो व्हाट इट स्टैंड्स फॉर आई फॉरगॉट दैट, बट आई विल लेट यू नो। बट दिस इज द टाइप ऑफ मैसेज फॉर्मेट जिसको यूज करते हुए कुछ इंफॉर्मेशन आपके मैसेज के साथ ट्रांसफर की जाती है फ्रॉम वन एंड टू एन अनदर एंड,
जिसमें इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द फॉर्मेट, अबाउट द लेंथ, अबाउट कपल ऑफ अदर थिंग्स दैट कम्स विद इट, ठीक है। Within an on receiver method, you will have to provide two parameters. One is going to be the context, कि इस एप्लीकेशन इस एक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट में ये काम होना चाहिए, एंड द सेकेंड इज गोइंग टू बी द इंटेंट, जो कि आप एक्सटर्नली रिसीव कर रहे हैं, अ मैसेज विद इन द इंटेंट इटसेल्फ रिसीव्ड फ्रॉम एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो ये दो चीजें वो रिसीव कर रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट और एंड द इंटेंट इटसेल्फ। इंटेंट को आपने जो है एक कंटेनर है जिसमें आपने टेम्परली स्टोर करा लेना है बंडल, और जो मैसेज है उसको आपने डिक्लेयर किया, देयर आर कपल ऑफ स्ट्रिंग्स जिसको आपने इधर डिक्लेयर कर लिया है और उसको आगे हम यूज करेंगे प्रोसेसिंग के लिए। देयर इज एन एसएमएस मैसेज एरे जो आपने डिक्लेयर किए मैसेजेस के लिए, एंड देन यू हैव गॉट अ स्ट्रिंग डिक्लेयर्ड जिसमें भी इनिशियली आपने कोई चीज इनकॉर्पोरेट नहीं की, जस्ट डबल कोट्स, मोस्ट प्रोबेबली माइट बी अ स्पेस इन देयर, जिसको आपने डिक्लेयर कर लिया और इसमें आप कॉन्कैटिनेट करवाते रहेंगे एट लेटर स्टेज। एक और स्ट्रिंग है जो कि आपको नेक्स्ट लाइन पे नजर आ रही है, उसको आपने नाम दिया है फॉर्मेट, और आप बंडल के अंदर से उसको रिसीव कर रहे हैं यूजिंग अ वैल्यू, अ की वैल्यू पेयर, ठीक है। और भी बड़े डाटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हमने यूज किया था की वैल्यू पेयर्स के अंदर, शेयर्ड प्रेफरेंसेस में हमने ये यूज किया था की वैल्यू पेयर। सेम इज द केस ओवर हियर, बंडल इज अ डाटा स्ट्रक्चर जो कि वंस अगेन इंटेंट से रिसीव करता है कीज एंड वैल्यूज, और उनको फिर रिट्रीव किया जा सकता है from the bundle using the keys itself. In this particular case, आपने bundle में जो intent receive किया था using a get extras method को use करते हुए, उसमें से आपने सिर्फ उसको instruction दी है कि इस method, इस SMS का जो format है, there are multiple formats of SMS, there are multiple standards, आपने सिर्फ और सिर्फ उसका फॉर्मेट रिट्रीव करना है ताकि उसको यूज करते हुए आप डिसाइड कर सकें कि उसको किस तरह से प्रोसेस करना है फर्दर। द नेक्स्ट बिट इज गोइंग टू बी द डिसाइफरिंग ऑफ द मैसेज इटसेल्फ। जैसे आप फर्स्ट फ्यू लाइंस में देख सकते हैं कि हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे, कुछ अरे टाइप के, कुछ स्ट्रिंग टाइप के। अब इनको हम यूज करते हुए उस मैसेज को रिट्रीव करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे और उसको हम प्रिंट आउट कराएंगे एट लेटर स्टेज। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैसेज इज अ स्ट्रिंग अरे, एसएमएस मैसेज अरे, जिसमें आपने पीडीयू जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसकी लेंथ को आपने रिसीव किए कि जो मैसेज मेरे पास आया है अभी उस मैसेज का लेंथ क्या है, वो कितनी बड़ी है, ठीक है, ताकि उसको लेटर ऑन यूज करते हुए आप फॉर लूप के अंदर यूज कर सकें और उस मैसेज को आप रिसीव कर सकें और ब्रेक कर सकें डिपेंडिंग ऑन द वर्जन ऑफ प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग। इस फॉर लूप के अंदर आपने सिंपल फॉर लूप लगाया है। द इम्पोर्टेंट बिट इज के मैसेजेस which is the SMS मैसेज array object, उसके लेंथ के फंक्शन को यूज करते हुए आपने एक फॉर लूप लगाया और उस फॉर लूप के अंदर आपने दो कंडीशंस लगाई हैं कि अगर द वर्जन ऑफ एंड्रॉयड इज न्यू तो उस केस में आपने मैसेज को ब्रेक किस तरह करना है, अगर ओल्ड फॉर्मेट ओल्ड एंड्रॉयड का वर्जन यूज किया जा रहा है उस केस में जो मैसेज आपने रिसीव किया है उसे आपने किस तरह से डिसाइफर करना है, किस तरह से ब्रेक करना है।
देयर आर 2 डिफरेंट फॉर्मेट्स जो कि नए एंड्रॉयड के वर्जन में या पुराने एंड्रॉयड के वर्जन में यूज होते हैं, और उसी को यूज करते हुए वो ब्रेक करेगा। अगर आपका एंड्रॉयड का वर्जन जो है वो 23 और अबव है, इन दैट पर्टिकुलर केस आप ट्रू कंडीशन में एंटर हो जाएंगे, और SMS मैसेज विच इज एन अरे ऑब्जेक्ट ऑफ SMS मैसेज क्लास, उसका एक फंक्शन है क्रिएट फ्रॉम PDU। सो PDU वंस अगेन इज अ फॉर्मेट। सो आप उस मेथड को यूज करते हुए उसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इनटू अ सिंपल एरे, जिसको आप लेटर ऑन यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। सेम इज द केस विद एल्स क्लास, कि एल्स में भी आप वही लॉजिक यूज कर रहे हैं, बट दिस टाइम instead of using 2 parameters, you are just using a simple parameter. Over here you have got 2 parameters, PDU standard जो आप यूज कर रहे हैं, and the format of the package itself. In this particular case आपके पास there is no second argument, और जो older version है वो that only use a single parameter for create from PDU. So once you have successfully retrieved the messages from the external environment through the intent, the only thing remaining is कि उसको जो है आप प्रोसेस करें, उसको शो करें on your device. So string message, as you can see over here, is a simple string variable जिसमें आपने कंकैटिनेशन कर दी है कि जी यू हैव रिसीव्ड SMS फ्रॉम जो भी ओरिजिनेटेड एड्रेस है। फॉर एग्जांपल, आई हैव रिसीव्ड ऑन माय डिवाइस अ मैसेज फ्रॉम यू। सो इन दिस पर्टिकुलर केस आपका जो मोबाइल नंबर है वो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा होगा फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर, इंडेक्स 0 पे, और उसके बाद जो है मैसेज की बॉडी मुझे रिसीव होगी, और नेक्स्ट लाइन पे जितना लंबा टैग होगा वो मुझे शो करता रहेगा मैसेज। एंड इफ यू कैन सी, इफ यू कैन ऑब्जर्व, दिस होल थिंग इज हैपनिंग विद इन द फॉर लूप इटसेल्फ। ठीक है, so this is the logic that most probably you will have to incorporate, you will have to implement once you get comfortable, आपको इसकी समझ थोड़ी सी और ज्यादा आने लग जाएगी। इस इम्प्लीमेंटेशन की कुछ डिटेल्ड एग्जांपल्स आपको इन URLs के ऊपर मिलेगी, जिनको आप यूज करते हुए इसको प्रैक्टिस के तौर पे खुद से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसमें सेंड SMS है और रिसीव SMS की कुछ एग्जांपल्स हैं। सो आई वुड रिकमेंड यू टू यूज दोज एज एन एग्जांपल, दैट इज गोइंग टू बेनिफिट यू अ लॉट। अच्छा जी, द लास्ट बिट जिसको हम डिस्कस करेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर्ड टू द ब्रॉडकास्ट रिसीवर। इवन द ब्रॉडकास्ट रिसीवर इज not that complicated. It is just a matter of doing the practice. SMS, sorry, sending an email. सर क्वेश्चन है। जी जी सर आपने बताया कि जब हम मैसेज सेंड कर रहे थे या रिसीव कर रहे थे तो हमने उसको लाइक एड्रेस अपना पास करते हैं यूनिक नंबर का। सो सर मैं क्वेश्चन है एक मिनट दोबारा से क्वेश्चन पूछें आप। सर क्या कर रहे हैं? अभी आपने लास्ट स्लाइड में बताया कि जब हम मैसेज रिसीव कर रहे थे या सेंड कर रहे थे तो हम अपनी जो सा ये यूनिक आईडी होती है हम सेंड कर रहे थे उसको, अपनी एड्रेस आईडी। आप अपनी एड्रेस आईडी नहीं भेज रहे होते, आप डेस्टिनेशन की नंबर को भेज रहे होते कि आई वांट टू सेंड दिस मैसेज टू दैट मोबाइल नंबर। यू नॉट सेंडिंग योर नंबर, ये बिहाइंड द सीन ऑटोमेटिकली वो पिक कर लेगा कि कहाँ से आ रही है। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हमारा नंबर है क्या हम उसको लाइक हाइड कर सकते हैं कि इस टाइप पॉसिबल कि हमारे सिर्फ मैसेज आए बट हमारा नंबर ना जाए,
क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि जो हमें वो लाइक यूएनटी की तरफ से ऑफिशियल मैसेज आ रहे थे मोबाइल पे, या फिर यूफोन की तरफ से आ रहे थे, जैस की तरफ से, तो उनका सिर्फ नाम लिखा आ रहा था और अंदर जी मैसेज प्रिंट होता है, सिर्फ हाँ ऊपर जी नंबर नहीं लिखा आ रहा था। तो हाँ जी, वो उसमें आप कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको वो स्पेशल जो नंबर है जो कि हिडन होगा फ्रॉम द यूजर, वो आपको थ्रू योर सर्विस सेंटर लेना पड़ेगा। सो यू नीड टू कोलैबोरेट विद द नेटवर्क जो कि आप यूज कर रहे हैं, और वो स्पेशल नंबर्स की प्रिविलेज होती है जो कि हिडन होता है फ्रॉम द यूजर इटसेल्फ। तो सर ये जो सा हम लोग विया अपने कोड के थ्रू नहीं उसको हाइड कर सकते हैं, लाइक कोडिंग के थ्रू? नहीं, वो कोडिंग के थ्रू आप कर सकते हैं, लेकिन वो मोस्ट प्रोबेबली इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। जब आप अपने सर्विस सेंटर को ये इंटेंट शो करेंगे ना कि मैं एप्लीकेशन, आई एम पार्ट ऑफ अ मार्केटिंग फर्म, और हम लॉट ऑफ एसएमएस जनरेट करते हैं अपने रजिस्टर्ड यूजर्स के लिए। जब आप इस किस्म की इंटेंट शो करेंगे उनको, तो दे आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर दैट नंबर फॉर यू, ताकि आपका जो नंबर है वो शो ना हो। लेकिन ये काम आप खुद भी कर सकते हैं, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग। ओके सो आपके केस में यस इज द आंसर। इट डिपेंड्स, अगर आप बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं होना चाह रहे, देन दैट कैन बी डन थ्रू द सर्विस सेंटर। अगर आप अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं, then yes you can even do that, but that requires bit of encryption, that requires bit of other telephony related matters जिसको आपको देखना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। ओके सर। अच्छा जी, the last bit is that if your application is using a capability जिसके थ्रू जो है वो email के लिए enable हो जाए, then you might have to configure your application using some protocols जिसमें आपके पास POP3 और IMAP के protocols हैं जो कि emails के लिए in general use होते हैं। So besides sending and receiving an email using Gmail or email application, you can also send email messages programmatically. So rather than using the external clients, अगर आप अपनी capability अपनी application के अंदर रखना चाहते हैं, in that particular case you might have to use a lot of methods that includes set data, put extra, set type and so on. So ये किस तरह से programmatically हम कर सकते हैं, उसकी कुछ snippet आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होगी, एंड आई होप इट्स क्लियर इनफ फॉर यू, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपने एक एक्टिविटी एक्सटेंड की ऐप कॉम्पैक्ट की, एंड विद इन द एप्लीकेशन इटसेल्फ ऑन क्रिएट के मेथड के अलावा आपको कुछ और मेथड्स नजर आ रहे हैं जिसमें ऑन क्लिक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपने टू CC एंड एक फंक्शन को भी कॉल किया, यहाँ पे सेंड ईमेल के फंक्शन को। यहाँ पे ईमेल एड्रेस है, CC जिसको करना है वो आप कर रहे हैं, और कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि आप भेज रहे हैं इस सेंड ईमेल के मेथड के अंदर। ये वो मेथड है जो आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है, इसमें जितने पैरामीटर्स आपने भेजने हैं टू एंड फ्रो, इट कैन बी डन, सो इट डिपेंड्स ऑन योर नेमिंग कन्वेंशन। सो इन दिस पर्टिकुलर केस आपने टू का एड्रेस भेजा, CC का एड्रेस भेजा, जो सब्जेक्ट था और जो बॉडी थी ईमेल की वो आपने यहाँ पे सेट किए, और इस सेंड ईमेल के फंक्शन के अंदर देयर आर सम मेथड्स जिसको आपने कॉल किया। एक चीज जो ऑब्जर्व कर सकते हैं आप, ईमेल इंटेंट, आपने एक इंटेंट बनाई है जिसका नाम आपने ईमेल इंटेंट रखा है, और इस ईमेल इंटेंट का जो मोड है वो आपने सेंड, एक्शन सेंड सेट किया है। सो एक्शन सेंड जनरली रिप्रेजेंट्स ईमेल, कि आप कोई इंफॉर्मेशन सेंड करना चाह रहे हैं वाया ईमेल। सो इन दिस पर्टिकुलर केस आपने इस इंटेंट को
इंस्ट्रक्शन दी है कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंटेंट I will be sending some information from this application, from this activity to another application or an activity. इस email intent का डाटा आपने सेट किया है यूनिफॉर्म रिसोर्स इंडिकेटर और मेल टू का जो प्रोटोकॉल है उसको यूज करते हुए आपने से इंडिकेट किया है कि जी बिहाइंड द सीन जो मेल टू प्रोटोकॉल है वो यूज किया जाए और उसके थ्रू जो है वो पार्सिंग हो, जितनी भी ईमेल की पार्सिंग होनी है, जितना भी टेक्स्ट पार्स होना है वो सारे का सारा इस टाइप का सेट कर दे। उसके बाद क्या हो रहा है, आपकी ईमेल एड्रेस जो उसने रिसीव की है, आपका जो कार्बन कॉपी उसने सीसी रिसीव की है, उस सब को जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है इनटू अ स्ट्रिंग अरे और उस स्ट्रिंग अरेज को लेटर ऑन उसने यूज किया है यूजिंग अ मेथड व्हिच इज कॉल्ड पुट एक्स्ट्रा। सो व्हाट यू आर डूइंग इज आपने एक ईमेल का इंटेंट बना लिया और उस इंटेंट के अंदर अब आप अपना जो मेथड अपना जो डाटा है वो सारे का सारा आप पैकेज कर रहे हैं। उसमें क्या क्या पैकेज हो रहा है, इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा ईमेल एक पैरामीटर है जिसमें आपने 2 को असाइन कर दिया। इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा सीसी इज रिप्रेजेंटिंग अ कार्बन कॉपी, उसका भी आपने असाइन कर दिया यूजिंग योर ओन स्ट्रिंग अरे ऑफ सीसी। और इसी तरह कपल ऑफ अदर पैरामीटर्स हैं जो कि बाय डिफॉल्ट आपके पास अवेलेबल है यूजिंग द पेरेंट इंटेंट ऑब्जेक्ट। ऑल यू नीड इज टू मैप इट टू अलाइन इट विद द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। इन आवर केस आपने आपकी जो प्राइमरी ईमेल है जिसको आपने भेजना है, आपने सीसी किसको करना है, सब्जेक्ट क्या होगा ईमेल का और टेक्स्ट की बॉडी क्या है, वो सारी की सारी आपने सेट कर दिए यूजिंग योर ओन पैरामीटर्स जो कि आपने इस मेथड के अंदर रिसीव किए। एंड एट द एंड व्हाट यू हैव डन इज आपने जो स्टैंडर्ड ईमेल का फॉर्मेट है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है RFC 822, उसको डिक्लेयर कर दिया कि जी हम इस स्टैंडर्ड को यूज करते हुए इस मैसेज को पास ऑन करना चाहते हैं फ्रॉम दिस activity to an external entity wherever it is. And the last bit is कि आपने simply उस intent को pass on कर दिया to the destination and you have executed the activity, you have started the activity. So this as compared to your SMS logic, it is pretty simple for a reason कि आप इसमें कपल ऑफ स्टेप्स कर रहे हैं। एक, आप अपना डाटा को सेट कर रहे हैं, सेकेंडली आप पुट एक्स्ट्रा को यूज करते हुए जो डिफॉल्ट पैरामीटर्स हैं उनको आप सेट कर सकते हैं यूजिंग योर ओन वैल्यू, और उसके बाद उस ईमेल की टाइप को आप सेट कर सकते हैं यूजिंग एन इंटरनेशनल मैसेजिंग फॉर्मेट, ईमेल मैसेजिंग फॉर्मेट, that is RFC 822. There are other formats which are available, लेकिन इन 3 मेथड्स को यूज करते हुए यू कैन सेंड एन ईमेल प्रोग्रामेटिकली फ्रॉम विद इन योर एक्टिविटी टू अनदर क्लाइंट और somebody, the destination itself. इसकी आउटपुट कुछ आपको इस तरह से नजर आ रही है कि आपने अपनी एक्टिविटी जो कि आपको लेफ्ट हैंड साइड पर नजर आ रही है, देयर इज जस्ट वन बटन हियर। बिहाइंड द सीन आपके पास ऑटोमेटिकली वो जो भी इंफॉर्मेशन थी दैट इज ऑलरेडी गिवन हार्ड कोडेड इन योर एप्लीकेशन। ऑल यू आर गेटिंग इज अ बटन, और उस बटन को आपने क्लिक किया, इट इज गोइंग टू ओपन अप डिफरेंट क्लाइंट्स that can be used to send an your information. आप देख सकते हैं the moment you're going to click on Gmail or Microsoft or any other email client, that information through the intent is going to be passed on to the email client जिसको आप यूज करते हुए फर्दर कस्टमाइज कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं to the destination.
ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन यू। आप इस पर्टिकुलर इंटेंट को यूज करना चाहेंगे या एक्सप्लिसिटली इन इंटेंट को यूज करना चाहेंगे टू चूज एन एप्लीकेशन, और यू वांट टू क्रिएट योर ओन ईमेल क्लाइंट, ऑलराइट? सो इट दैट डिपेंड्स ऑन यू and your application. Okay, I think we have covered all three scenarios, 4 scenarios in fact. That includes launching an SMS app using implicit intent, how to use SMS, it's not messenger, it's manager, SMS manager, and how to use the broadcast receiver class so that an application can wait for an external event to happen. And the last bit is, if you want to incorporate the email capability in your application, that can choose an external client to send an email, you can even do that bit. सर एक Okay. क्वेश्चन है जी जी सर, जब भी आपने ईमेल का हमें स्टैंडर्ड दिखाया है, तो ये जो सा आपने सब स्टैंडर्ड दिखाया है, इसके लिए हम सिर्फ टेक्स्ट मैसेज सेंड कर सकते हैं या हम लोग को लाइक वीडियो या ऑडियो मैसेज भी सेंड कर सकते हैं? जी जी, वो भी हो सकता है। उसके लिए कुछ और एक्स्ट्रा टैग्स हैं जो कि आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेंगे in this particular case. So there is a list available. You can extend it further. You can even create your own client ताकि आपको वो एप्लीकेशन को चूज ही ना करना पड़े। In this particular case आप देख सकते हैं कि it is asking to choose an application, create a chooser. आप कौन से एप्लीकेशन को यूज करना चाहेंगे। आपके केस में if you have got a specialized email client, यानी let's suppose आप अपना Gmail, आप अपना own mail client बनाना चाह रहे हैं, उसमें ये capability आप डाल सकते हैं, flexibility। लेकिन yes, to answer your question, आप multimedia format को भी इसके साथ भेज सकते हैं। और सर मैं एक और क्वेश्चन है, जब हम लोग मैसेज सेंड कर रहे होते हैं तो हम क्या सेंडर की तरफ रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि सिर्फ आपने इतनी अरे लेनी है, लेट्स सो 15 वर्ड्स की, जिसके अंदर आपने मैसेज सेंड करना, 15 से 16 नहीं जा सकते? आप SMS की बात कर रहे हैं कि ईमेल की बात कर रहे हैं? SMS की। वो भी किया जा सकता है। आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम लॉजिक के अंदर कि आप कितना बड़ा मैसेज भेज सकते हैं। इनफैक्ट ये चीजें 2-3 जगह पे सेट हो सकती हैं। आपके फ्रंट एंड पे भी सेट हो सकती है, आपकी XML फाइल के अंदर के वैलिडेशन के दौरान ही वो कह दे कि यू कैन नॉट टाइप मोर देन 10 कैरेक्टर्स, लेट्स सपोज। और आपकी बैक एंड लॉजिक के अंदर भी ये चीज सेट हो सकती है कि आपका जो मैसेज है कौन सी? दोनों जगह पे अप्लाई करें। ओके सर। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन? नो सर। जब हम सेंड करें तो उसका भी ये सिनेरियो होता है, बस उसमें हमें लाइक एडिशनल कुछ चीजें ऐड करनी होती है या उसका एक डिफरेंट सेट होता है हमारे पास? दोबारा से क्वेश्चन करें। मैं आपसे पूछा था, ये तो आपने हमें SMS का बताया, बट इन केस अगर हमें MMS करना तो उसका भी क्या ये हमारे पास सेट होता है और उसमें सिर्फ एक जो एडिशनल ज्यादा होती है वो एक डिफरेंट सिनेरियो होता है? हाँ जी, वो डिफरेंट सिनेरियो होता है। उसमें आपका जो फाइल साइज है वो सबसे बड़ी कंस्ट्रेंट होगी आपके लिए, ठीक है? जैसे लेट्स सपोज आप ये LMS को यूज करते हैं, यू कैन नॉट अपलोड मोर देन 3 MB, राइट? यस सर। ठीक है, तो ये वो रिस्ट्रिक्शन है जो कि फ्रंट एंड पे भी सेट है। मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो डेटाबेस है उसकी भी रिस्ट्रिक्शन हो और आपकी जो बिजनेस लॉजिक दरमियान में है वो भी ये चीज हैंडल कर रही हो। सो ऑल 3 कैन बी अप्लाइड, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है, कितनी स्पेस तक की। अगर आपके पास अनलिमिटेड स्टोरेज है, क्लाउड स्टोरेज है, मोस्ट प्रोबेबली इन योर पर्टिकुलर केस आप कह सकते हैं भाई आप 10 GB का भी अपलोड कर लें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? दैट डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस। अच्छा जी, नाउ हमारे पास टाइम कितना रह गया अभी? 15 मिनट। अच्छा जी, एक तो आई थिंक देयर वाज अ क्वेश्चन कि जी इसको एक्सटेंड कर दें। जी सर, ट्यूटोरियल 6 और असाइनमेंट 1। सर असाइनमेंट 1 की कर ले।
यार आप लोगों सर का ये थोड़ा सा दोनों सेम जस्ट चीजें सर हैं असाइनमेंट 1 भी कर दें सर। ये दोनों कुछ ये इशू आ रहे थे ये वो पता क्या है, असाइनमेंट 1 ये में। शायद आप लोगों की आदत बन गई, नाउ बिकेम एन सर हैबिट कि आप लोगों ने टाइम पे काम नहीं करना। सर ये बात नहीं है, उसमें छोटे छोटे इश्यूज आ रहे थे। अब मैंने हाँ उसको मिक्सअप यस किया सर। हुआ था, स्लाइड से भी मिक्स किया हुआ था, ट्यूटोरियल से भी मिक्स किया हुआ था। या एक चीज को फॉलो नहीं कर रहे थे, अगर एक चीज को यस फॉलो सर वो करते तो ना होता। असाइनमेंट ये 1 मैं में आ आपको रहे थे। 1-2 दिन की दूंगा, इस दिन दूंगा मैं। सर एक तो दिन सर की ठीक देरी है, बहुत हो जाएगी। इनफ है सर 2 दिन दे दे। सर। कल रात 12 बजे तक की सबमिशन कर दें असाइनमेंट 1 की, जी इनफ है कल रात 12 बजे तक की है, जी सर। 28 थैंक यू। मिड। ठीक है, ये मैंने एक्सटेंड कर दी। प्लीज ट्राई टू ठीक है सर, थैंक यू। सबमिट द थिंग्स ऑन टाइम, क्योंकि ये वो एथिक्स हैं जो कि आप लोगों ने लर्न करने हैं। अगर आप लोगों की आदत बन गई कि भाई यार 2 दिन तो मिल ही जाएंगे बाद में, चलो खैर है, तो फिर वो आपका बन जाएगा इस तरह का मोड। सर अच्छा जी, इसमें ट्यूटोरियल 6 कर दिया ऑलरेडी मैंने 28 तक, और सेम गोज फॉर असाइनमेंट। ठीक है, आई एम गोइंग टू गिव यू टिल 29th। आपको एक एक्स्ट्रा डे दे दिए मैंने, और 2 दिन दे दिए। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ये मैंने सेव कर दिया। अब आपका ट्यूटोरियल जो है वो कल 12 बजे रात तक सबमिट हो सकता है, और आपकी असाइनमेंट जो है वो परसों परसों रात 12 बजे रात तक होगी। ठीक है, सो प्लीज ट्राई टू फिनिश इट। द रीजन उसको मैं मजीद प्रोलॉन्ग नहीं करना चाह रहा, क्योंकि हमारा मेन टारगेट इज योर प्रोजेक्ट। असाइनमेंट 3, असाइनमेंट 2 छोटी छोटी प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स हैं। असाइनमेंट जो लास्ट है विच इज योर असाइनमेंट 3 में प्रोजेक्ट। क्या करना है? जी असाइनमेंट 3 पे क्या करना है, कोई एक्सप्लेन करेगा? ये अभी गालिबन वो स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट सेशन में नहीं आए थे, ऐसे ही है। यस सर, वो हम उसको कह रहे थे कैजुअल फेयर पे। हाँ जी, कौन एक्सप्लेन करेगा कि असाइनमेंट 3 में क्या करना है? कोई नहीं, सारे डर रहे हैं। सर जी आप ही खाते हैं। अच्छा सर आपके होते हुए करना सर नहीं चाह रहा। सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर जी, अटेंडेंस होगी क्योंकि नमाज पढ़ने का टाइम हो गया तो वहां जाना नमाज पढ़ने जा सकते हैं? अच्छा क्या जो यार सबर कर लो थोड़ा सा, अभी मिस नहीं होती, उसके लिए काफी टाइम है। अच्छा जी, असाइनमेंट नंबर 3 वंस अगेन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। असाइनमेंट 3 में क्या करना है? असाइनमेंट 3 इज अबाउट कंपैरिजन, सो यू विल हैव टू डू अ रिसर्च on different mobile development frameworks. There is a long list, लेकिन मैंने आपके लिए स्पेशली चूज किए हैं वो फ्रेमवर्क्स जो कि काफी फ्रीक्वेंटली इंडस्ट्री में यूज होते हैं। React Native, Flutter, Xamarin, you have got Angular, you have got Iconic। ये 3 फ्रेमवर्क्स हैं मोबाइल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स, जिनको आपने कंपेयर करना है एक दूसरे के साथ, and you will have to propose only one of them। ठीक है, ये पांचों के पांचों आपने देखने हैं। आई थिंक द बेटर थिंग इज कि एक एक मेंबर को एक एक फ्रेमवर्क दे दें, यहाँ भी तुम इस पे काम करो, तुम इस पे करो, और उसके बाद जो है मिलके उसका कंपैरिजन बना लें आप लोग। अब कंपैरिजन किस तरह से कर सकते हैं? इन ऑर्डर टू कंपेयर देयर आर वेरियस पर्सपेक्टिव जिसको देखा जा सकता है, जिसमें से कुछ मैंने लिस्ट डाउन कर दी है इन ग्रीन। फॉर एग्जाम्पल कि इन सब की लाइसेंसिंग रिस्ट्रिक्शन क्या है, ये सारे ओपन सोर्स हैं, फ्रीली अवेलेबल हैं, या किसी की प्रोप्राइटरी भी है, ये किस किस्म के फ्रेमवर्क, किस किस्म की टारगेट एप्लीकेशन इसमें बन सकती हैं, कौन कौन सी डेवलपमेंट लैंग्वेजेस के साथ ये कंपैटिबल हैं, टारगेट प्लेटफॉर्म इनका कौन सा है, ये एंड्रॉयड है कि माइक्रोसॉफ्ट है कि ये iOS है, so and so forth। there are I think 15-20 perspectives given over here। all you need is to choose maybe 10-15 out of this green perspective, और उसका एक कंपैरिजन आपने बनाना है इन सब के लिए साइड बाय साइड, और आपने सिर्फ एक प्रपोज करना है इन सब में से कि जी वी हैव डन द
comparison of all five, I think Flutter is better for us for these reasons कि जी ये इसकी learning curve नहीं है, इतनी ज़्यादा complicated नहीं है, flexible है, all platforms के ऊपर चल सकता है। जी ज़हीन। सर हम लोग एंड्रॉइड नेटिव यूज कर सकते हैं विद एमवीएम आर्किटेक्चर? ये 5 है आपके पास जो सामने आपको नजर आ रहे हैं, और अगर आप अपना कोई यूज करना चाहें, यस यू कैन, लेकिन उनकी भी कंपैरिजन आपको इनके साथ करना पड़ेगा। समझ आई? यू आर Okay, sir. यूजिंग, so whatever platform you want to use, yes you can, लेकिन आपको Okay, कंपेयर करना पड़ेगा इन सब के साथ यूजिंग ये पर्सपेक्टिव। जितने भी आपको दिए हुए हैं ना, ये मेरे ख्याल में 20-25 है शायद, ठीक है? इन सब में से आप कोई सिलेक्ट कर लें टॉप 15 और उन सब का कंपैरिजन बनाएं अपने रिकमेंडेड फ्रेमवर्क के साथ या इनके साथ, ठीक है? अगर आप अपना यूज कर रहे हैं तो वो 6 बन जाएंगे। सो इट्स अप टू यू। असाइनमेंट नंबर 3 में ये काम करना है आपने। असाइनमेंट नंबर 2 जो है, that is once again linked with this, using your selected framework। आपने एक छोटी सी एप्लीकेशन बनानी है जो कि सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट कर सके कि भाई ये फ्रेमवर्क यूज करें तो ये फायदे हैं इसके, ठीक है? किसी ने मुझसे पूछा था कि जी हम असाइनमेंट 1 को भी यूज कर सकते हैं, उसके लिए द आंसर इज यस। आप असाइनमेंट 1 को भी यूज कर सकते हैं, बट रिगार्डलेस ऑफ द केस आपकी असाइनमेंट 1, 2 एंड 3 यूज होंगी आपके प्रोजेक्ट के अंदर। जो आपका बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें ये सब कुछ आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि आपने एक फ्रेमवर्क भी उठाया है और आपने जो भी लर्न किया अभी तक, दैट माइट इंक्लूड ईमेल कैपेबिलिटीज, एसएमएस, जीपीएस में भी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशंस में। पीछे जितनी भी एक्टिविटीज पढ़ी हैं व्हाटएवर, वो सब कुछ आपके लार्जर प्रोजेक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो असाइनमेंट 3, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 1 एंड योर प्रोजेक्ट, दे आर ऑल कनेक्टेड टुगेदर, ठीक है? सो द गुड थिंग इज यू कैन वर्क इन अ टीम ऑफ 4। आप असाइनमेंट 3 के लिए भी, असाइनमेंट 2 के लिए भी और अपने प्रोजेक्ट के लिए भी 4 मेंबर्स के ग्रुप में काम कर सकते हैं। आई वुड रिकमेंड यू टू चूज वाइजली। अपनी टीम ऐसी बनाएं जो कि सारे काम कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स को रखेंगे जो कि काम नहीं करना चाहते बट नॉट नेसेसरली वीक, ठीक है, आई वुड रिकमेंड यू के उन काम करने वाले स्टूडेंट्स के साथ मिलके काम करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले सकें, ठीक है? इसकी प्रेजेंटेशन आपको देनी पड़ेगी आफ्टर द सबमिशन ऑन 9th of January। आपको किसी एक सेशन में 15 मिनट्स मिलेंगे और उस 15 मिनट्स में आपने ग्रुप प्रेजेंटेशन करनी होगी, ऑल 4 of you in front of me and couple of others, जिसको यूज करते हुए आप ये काम करेंगे, ठीक है? एनी क्वेश्चंस? सर ये जो प्रेजेंटेशन रहेगी ऑनलाइन रहेगी या ये जो प्रेजेंटेशन है ये ऑनलाइन नहीं होगी, ये फेस टू फेस होगी। आप इंशाल्लाह इस 9th जनवरी तक वापस आ चुके होंगे। मेरे ख्याल में 6 तक है शायद आप लोगों की छुट्टियां। कब तक है छुट्टियां? यानी छुट्टियां नहीं, यानी ऑन छुट्टियां नहीं किसी को, यानी ऑनलाइन सब कर रहे हैं। तो 6 होपफुली 6 जनवरी से आप लोग वापस आ जाएंगे। आपके पास 9th तक सबमिशन का टाइम होगा और जो कमिंग सेशन होगा उसमें प्रेजेंटेशन हो जाएगी। इट्स नॉट गोइंग टू टेक दैट मच टाइम, ठीक है जी? कोई और क्वेश्चन? सर कमिंग सेशन में किस चीज की प्रेजेंटेशन होगी? इस कमिंग में नहीं, 9th के बाद सेशन में। सर एक प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन तो जब सेमेस्टर खत्म होने वाला होगा तब होगी ना, फाइनल से पहले? नहीं, आप मेरे ख्याल में सही समझे नहीं, शायद मेरी आवाज कट गई थी। मैंने कहा है कि इस असाइनमेंट की सबमिशन के बाद कमिंग सेशन में इनकी प्रेजेंटेशंस होंगी। असाइनमेंट 3 की बात कर रहे हैं जी, असाइनमेंट 3 की बात हो रही है।
जी अगर कोई और कंफ्यूजन है तो बता दें. आई थिंक वी हैव गॉट अनदर कपल ऑफ मिनट्स. नो किसी सर और अटेंडेंस का लगा. अटेंडेंस मैं लगा लूंगा. आई गेट द लॉग्स, तो उसके थ्रू जो है I'll get it. आपकी अटेंडेंस जो है वो हो जाएगी. If you have got any question, you can ask me. Otherwise, we can conclude the session. Anyone? नो सर. नो सर. Okay, all good, all good. All right, guys. In that case, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी on Thursday, and Thursday को इंशाल्लाह जो है हम एक्सप्लोरेशन शुरू करेंगे GPS के ऊपर, ग्लोबल पोजीशनिंग, और उस पे फिर हम कपल ऑफ सेशन लगाएंगे जिसमें आप गूगल मैप्स को यूज करेंगे, डिफरेंट पिंस का इस्तेमाल करेंगे मैप्स के ऊपर यूजिंग योर एप्लीकेशन एंड सो ऑन. इस तरह के सारे काम हम एक्सप्लोर करेंगे, एंड दैट माइट eventually become a part of your project as well. Okay, so Okay, keep sir. that thing in Okay. mind. All right. थैंक यू सर. All right, guys. Yes, sir. Thank you. Assalamu alaikum, and I'll see you on Thursday. अल्लाह. वालेकुम. Allah Hafiz.